अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग में खुश आमदीद। दिस इज़ अकील अहमद एंड यू आर वाचिंग मैग्नेट लर्निंग and we are going to resume our course Rain and Martin Primary School English Grammar and Composition. Today we are going to do chapter number 6 and chapter number 6 includes pronouns. Here we see unit 2 now. In unit number 1 we did 5 chapters regarding nouns. Now from chapter number 6 we are in unit number 2 now, and this is all about pronouns. So here we are and we are going to study it. So be patient with us and see what we are going to learn here. So let's continue. Dear students, chapter number 6, pronouns. Unit number 2, pronouns. Read the sentences in boxes 1 and 2. Let's read now. Two boxes are here. In box number 1, a sentence. Sikandar lives in Multan. Sikandar is a merchant. In box 2, sentence number 1. Sikandar lives in Multan. He is a merchant. B. In box 1. Jamila lost the book. Jamila cried. Second sentence in box 2. Jamila lost the book. She cried. Sentence C in box 1. Rashid has a parrot. The parrot speaks well. Sentence number 3 in box number 2. Rashid has a parrot. It speaks well. Box 1 sentence D. Dilawar saw the thieves. The thieves wore masks. Box 2 में sentence number 4. Dilawar saw the thieves. They wore masks. Sentence E in box 1. Rashid is playing. Tell Rashid to read. Sentence 5 in box 2. Rashid is playing. Tell him to read. Sentence number F. Box number 1. Where is Saima? Ask Saima to come here. Sentence number 6 in box 2. Where is Saima? Ask her to come here. Sentence G in box 1. Where is the chair? Bring the chair here. Sentence 7 in box 2. Where is the chair? Bring it here. Sentence number 8 in box number 1. Where are the boys? Call the boys soon. In box number 2, the last sentence, 8th. Where are the boys? Call them soon. So dear students, let's see what the next statements regarding sentences or pronoun, what they suggest us and what we are going to learn about them. A sentence, the word he is used instead of the noun Sikandar. Okay, A यहाँ पर देखें सिकंदर रिपीटेड है और इसमें देखें सिकंदर की जगह यहाँ पर ही यूज हुआ है, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं हम। जमीला के लिए शी को यूज किया गया है, यहाँ पर देखें जमीला शी। इट इज यूज फॉर पैरेट एंड चेयर, यहाँ पर देखें पैरेट और यहाँ पर देखें हमने चेयर के बारे में पढ़ा था, तो इन दोनों के लिए हमने यहाँ पर देखा है कि इट का जिक्र हो रहा है, यानी इट को यूज किया जा रहा है। एंड हियर यू सी दे इज यूज फॉर द थीव्स, थीव्स के लिए दे को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमने थीव्स के बारे में पढ़ा था, थीव्स और उनके लिए दे यूज हुआ है। देम इज यूज फॉर द बॉयज, बॉयज के लिए हमने देम को यूज किया है, यहाँ पर पढ़ा है। ये देखें बॉयज कहाँ हैं, तो कॉल देम सून, तो ये बॉयज के लिए है। हिम इज यूज फॉर राशिद एंड हर इज यूज फॉर साइमा, यहाँ पर देखें हमने साइमा के बारे में हर स्टडी किया, राशिद के हवाले से हमने हिम को पढ़ा। तो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हम जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पहले बॉक्स में हमने देखा था कि ईच सेंटेंस जो है ना वो रिपीट कर रहा था सेम ही नाउन को, सिकंदर सिकंदर, जमीला जमीला। और बॉक्स 2 में हमने देखा कि सिकंदर के जगह ही को यूज़ किया गया, जमीला की जगह शी को इस्तेमाल किया गया। तो ये जो नाउन की जगह पे और कोई वर्ड आता है ना यूज़ होता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, देखें नेक्स्ट पेज पे जी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लिसन टू राशिद, ही इज सिंगिंग। गोहर एंड गनी आर हेयर।
They have come to hear him. He will be glad to see them. Now in the above sentences, ऊपर वाले जुमलों में the words in italics are used instead of nouns. ये जो इटैलिक्स फॉर्म यानी जो मुड़े हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड्स, दे है, ही है, देम है, हिम है, ये इटैलिक्स फॉर्म में है, ठीक है। और ये नाउन्स की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी इंस्टीड ऑफ नाउन्स मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह। सो इट इज़ ईजियर एंड बेटर टू यूज सच वर्ड्स दैट देन टू कीप ऑन रिपीटिंग द नाउन्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आसानी रहती है और अच्छा भी यही होता है कि हम बजाय नाउन्स को रिपीट करें, उनकी जगह हम ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। एंड से लिसन टू राशिद, राशिद इज सिंगिंग। अगर देखें राशिद और राशिद को यहाँ पर रिपीट किया गया। गोहर एंड गनी आर हेयर, गोहर एंड गनी हैव कम टू हियर राशिद। नाउ गोहर एंड गनी को भी रिपीट किया गया और राशिद को अगेन रिपीट किया गया। राशिद अगेन, राशिद विल बी ग्लेड टू सी गोहर एंड गनी। तो देखें ये बार बार यानी वही नाम रिपीट होते हैं, तो एक लैंग्वेज में वो ब्यूटी नहीं रहती। तो इसी वजह से लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को कुछ वर्ड्स के साथ चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर भी लगे और पढ़ने में ईजियर भी लगे। तो आगे क्या कर रहा है, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर और इंस्टीड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल हों या नाउन के बदले इस्तेमाल हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कहा जाता है। द वर्ड प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। तो प्रोनाउन का मतलब भी यही है कि नाउन की जगह, जो लफ्ज नाउन की जगह ले। आगे है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। तो ये सिंपल से एक डेफिनेशन हम यूज करते हैं कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो इंस्टीड ऑफ नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। नाउ यहाँ पर देखें एक टेबल बनी हुई है जिसमें जो प्रोनाउंस है ना उनके हवाले से उनको जेंडर्स, पर्सन, जिस तरह नाउन में हमने पढ़ा था, और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में वो किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसके भी फॉर्म्स होते हैं, पर्सन, जेंडर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह सिंगुलर प्लूरल भी वो थे। तो प्रोनाउन अगर नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी ये गुंजाइश है कि सिंगुलर कोई नाउन की जगह वर्ड सिंगुलर के तौर पर आएगा, कोई प्लूरल के तौर पर आएगा, तो कभी वो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, तो जिसका जेंडर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर माने रखती हैं और इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, चलें आगे। नंबर, पर्सन, जेंडर, पर्सनल प्रोनाउंस को देखते हैं अभी। अब नंबर में देखें सिंगुलर। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, दोनों मेल फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो एक ही सब्जेक्ट होता है, आई। ये फर्स्ट पर्सन है, मेल भी यूज़ कर सकता है, फीमेल भी, और उसके लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है उसका वो है मी। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर में मेल फीमेल के लिए जो इस्तेमाल होगा वो होगा यू, तुम, ठीक है, या आप। और ये जो है ना ऑब्जेक्ट फॉर्म भी सेम ही रखता है अपना। थर्ड पर्सन तीनों हो सकते हैं, मेल, फीमेल, न्यूटर, जेंडर, ठीक है। अब मेल के लिए ही, उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो हिम, फीमेल के लिए शी और उसके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, और न्यूटर का इट होता है और उसका सेम ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है इट। अभी प्लूरल में फर्स्ट पर्सन आते हैं हम, जिसमें मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए वी इस्तेमाल होता है और उसके लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस। एंड सेकंड पर्सन मेल फीमेल के लिए प्लूरल में यू और उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी सेम ही यू। एंड थर्ड पर्सन मेल फीमेल न्यूटर के लिए तीनों के लिए सब्जेक्ट फॉर्म दे और प्लूरल फॉर्म देम। सो ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टूड दिस टेबल एंड this is I think all about our pronoun lecture, pronoun chapter number 6, and now we are going to solve the exercises to further understand what is all about pronoun. Okay dear students, in exercise number 1 what is demanded here, in the following sentences नीचे दिए गए जो 10 sentences हैं, the words in italics are pronouns. इनमें जो इटैलिक फॉर्म्स के वर्ड यूज किए गए हैं वो प्रोनाउंस है। पिक आउट द नाउन्स फॉर विच द प्रोनाउंस आर यूज्ड। तो इनमें से
जो ये प्रोनाउन जिन नाउन्स की जगह इस्तेमाल हुए हैं वो नाउन्स आपने पिक आउट करने हैं, यानी उनको बताना है कि ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस देखें, फ्रेड यू आर वेरी लेजी, कोई फ्रेड को कह रहा है कि तुम बहुत सुस्त हो, तो यहाँ पर यू जो है ना वो फ्रेड के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इटैलिक फॉर्म में जो ये यूज हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन, ये फ्रेड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। प्रोनाउन यू इज यूज्ड फॉर फ्रेड, तो यहाँ पर मैं नाउन लिख रहा हूँ फ्रेड। माई नेम इज बाबू, मेरा नाम बाबू है, और मैं बाबू हूँ अपने लिए आई इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, तो ये आई मेरे लिए है, बाबू मतलब जो नाउन है। शीरी व्हाट हैव यू डन, यहाँ पर शीरी नाउन है जिसके लिए यू इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शीरी। राना वेंट आउट जस्ट नाउ, शी विल रिटर्न इन एन आवर, तो ये जो शी का वर्ड है ना प्रोनाउन, ये राना के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर मैं राना लिखूंगा। द टीचर हैज अ न्यू डेस्क, इट इज मेड ऑफ वुड, टीचर के पास एक न्यू डेस्क है और वो वुड की बनी हुई है, ठीक है। तो ये इट डेस्क के लिए है, तो हम इट प्रोनाउन स्टैंड फॉर डेस्क। 6. All the boys have new desks, they are all made of woods, यहाँ पर भी डेस्क बहुत ज्यादा हैं, न्यूटर हैं, और उनके लिए प्रोनाउन दे यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम डेस्क लिखेंगे नाउन। What a beautiful flower, राशिद where did you buy it, राशिद ये तुमने कहाँ से खरीदा, तो देखें ये यू जो है ना राशिद के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर राशिद को लिखेंगे। माई मदर कॉल्स मी मोती, आई लव हर, ठीक है। यहाँ पर मदर और मोती दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। तो ये जो मोती है उसके लिए मी इस्तेमाल हुआ है, और जो हर है प्रोनाउन वो मदर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर मदर और मोती दोनों नाउन्स हैं जिनको हम यहाँ पर पिक आउट कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 9, इज शी योर सिस्टर हु ब्रॉट हर हेयर, नाउ सिस्टर शी हेयर, हर और शी जो है ना दोनों प्रोनाउन सिस्टर के लिए इस्तेमाल हुए, तो हम यहाँ पर सिस्टर बताएंगे कि ये वो नाउन है जिसके लिए दो प्रोनाउंस यूज हुए हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 10, the theater is full of children, they are about to see a comic show, now theater is full of children, ये वो बच्चे हैं यानी नाउन्स जिनके लिए ये दे प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर कहेंगे चिल्ड्रेन दे के लिए इस्तेमाल, यानी दे जो है वो चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर 2। Dear student, in exercise number 2, pick out the pronouns in the following sentences and say which nouns each one stands for। अभी यहाँ पर उलट काम है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज नंबर 2 उसके उलट है। यहाँ पर हमने क्या करना है, वो प्रोनाउंस हमने जो है ना पिक आउट करने हैं जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल किए गए, और वो नाउन्स भी बताने हैं। When the tiger saw the woman, it sprang upon her, यानी ये टाइगर जिस तरह वुमन ने उसको देखा तो इसने उसके ऊपर झपट मारी, तो ये इट जो है ना वो टाइगर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइगर नाउन है और उसके लिए इट प्रोनाउन को इस यहाँ पर यूज किया गया है। द गर्ल लॉस्ट अ बैंगल बट शी फाउंड इट नियर हर, अब यहाँ पर देखें गर्ल नाउन बैंगल भी नाउन, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे भाई गर्ल के लिए जो प्रोनाउन है वो शी भी यूज हुआ है और हर भी यूज हुआ है, और बेंगल जो नाउन है उसके लिए जो प्रोनाउन है यहाँ पर वो इट है। थर्ड, जस्ट लिसन टू हारिस, ही मस्ट बी मेड टू टॉक सो, नाउ हारिस को सुनो, वो यानी हारिस जो नाउन है यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हारिस के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउन ही, तो ही को हमने पिक आउट किया। फोर्थ, बाय देम दे आर द बेस्ट मैंगोज इन द शॉप, बाय देम इनको खरीदो, दे आर द बेस्ट मैंगोज, यानी मैंगोज
वो नाउन है यहाँ पर जिसके लिए देम भी यूज हुआ है, दे भी यूज हुआ है, ठीक है, दे और देम दोनों। नाउ सेंटेंस नंबर 5, अ माइजर बॉट अ लंप ऑफ गोल्ड, ही बरीड इट इन अ होल। नाउ माइजर इज अ पर्सन जिसके लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है यहाँ पर। माइजर एक बंदा है, उसके लिए प्रोनाउन ही। गोल्ड एक न्यूटर जेंडर है, उसके लिए इट। तो हम यहाँ पर गोल्ड नाउन लिख रहे हैं और उसके लिए प्रोनाउन इट को यूज किया गया है यहाँ पर। 6 नंबर सेंटेंस, सम बॉयज फाउंड अ नेस्ट इन अ ट्री। तो बॉयज भी नाउन, नेस्ट भी और ट्री भी। चलें, इट वॉज वंडरफुल, क्या चीज वंडरफुल है? जो नेस्ट उन्होंने क्या किए, फाउंड किए ट्री में, ठीक है। दे फाउंड 5 एग्स इन इट, उन्होंने 5 अंडे भी उसमें क्या किए हैं, देखे हैं। तो ये इट अगेन किसके लिए है? नेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम नेस्ट एक तो नाउन है जिसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि इट प्रोनाउन एक मर्तबा, इट प्रोनाउन दूसरी मर्तबा यूज हुआ है, ठीक है। एंड बॉयज जो पर्सन्स हैं उनके लिए यहाँ पर दे यूज हुआ है प्रोनाउन। सो सेंटेंस नंबर 7, द लार्क इज सिंगिंग गैली, इट लव्स द ब्राइट सन। एक पंछी का नाम यानी परिंदे का नाम है लार्क, ठीक है। ये तो लार्क हो गया नाम यहाँ पर। अब उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट है यहाँ पर, ठीक है, इट लव्स। Now, sentence number 8. Now, Tom took his breakfast and ate it by a purling brook. Now, Tom took his breakfast. उसने खाई अपनी and यानी लिया उसने अपना breakfast और took and ate it और उसको खाया। तो breakfast यहाँ पर एक नाउन है जिसके लिए it प्रोनाउन यूज हुआ है। नंबर 9, गफूर इज अ गार्डनर, ही वर्क्स अलोन। गफूर एक गार्डनर है, वो अकेला काम करता है। तो गफूर इज अ नेम ऑफ पर्सन और उसके लिए प्रोनाउन ही को यूज किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2 इन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 में जो करने के लिए चीज है वो ये है कि चेंज सम ऑफ द नाउन्स इनटू प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखें, अगर सेंटेंस नंबर 1 में है तो ये हर एक सेंटेंस के लिए कह रहा है कि हर एक सेंटेंस में से जहाँ पर आपने कुछ नाउन्स को प्रोनाउंस में चेंज करना है, पूरे नहीं लेकिन सम ऑफ द नाउन्स को, ठीक है। यानी जो पहले हम नाउन यूज़ करते हैं वो तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। आगे जो हमने रिपीटेशन को ख़त्म करना है तो उस नाउन की जगह हमने क्या यूज़ करना है, उसके सुटेबल प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो चलें इसको अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखें जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द गर्ल सेइंग स्वीटली, द पीपल लिसन टू द गर्ल, द पीपल लाइक द गर्ल, द पीपल गेव द गर्ल मनी। सो नंबर फर्स्ट सेंटेंस, इसको चेंज करना है, किस तरह करेंगे? द गर्ल सेइंग स्वीटली, इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। द पीपल लिसन टू द गर्ल, अब देखें यहाँ पर पीपल भी पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ है इस पूरे स्टेटमेंट में और गर्ल भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम। यहाँ पर गर्ल रिपीटेशन में आ रहा है ये वर्ड, तो यहाँ पर द पीपल लिसन टू द गर्ल। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस गर्ल के लिए यूज होगा क्योंकि वर्ब के पास हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो गर्ल सेइंग स्वीटली द पीपल लिसन टू हर, यहाँ पर गर्ल क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द पीपल, अब देखें ये पीपल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, द पीपल। तो अब ये प्लूरल में है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे लाइक्ड द गर्ल, यहाँ पर अगेन यही गर्ल है, इसके लिए हम हर इस्तेमाल करेंगे। द पीपल गेव द गर्ल मनी, नाउ अगेन द पीपल प्लूरल है तो हम इसको दे गेव द गर्ल मनी, सेम गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल के लिए हम हर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नाउन्स फ्रॉम ईच ऑफ द सेंटेंस हमने क्या करने हैं, चेंज करने हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखें, दीज सोल्जर्स आर वाउंडेड, अगेन दीज सोल्जर्स रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह तंग है तो रिपीट में जो ये दीज सोल्जर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, दीज सोल्जर्स, इनको हम यहाँ पर दे में
चेंज करेंगे प्रोनाउन के साथ। दे मस्ट गो टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर्स विल हील दीज सोल्जर्स। अगेन यहाँ पर मैं इनको अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर, और ये दीज सोल्जर्स यहाँ पर सेकंड ई में है, और इनको अगेन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म इनका लिखेंगे, क्योंकि हील वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम यहाँ पर देम लिखेंगे। डॉक्टर्स विल हील देम, द डॉक्टर्स। अब देखें डॉक्टर्स यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये द डॉक्टर्स जो हैं इनकी जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दे। विल नॉट मेक द सोल्जर्स, अब मेक वर्ब आया है, द सोल्जर्स अगेन रिपीट हुआ है, तो द सोल्जर्स फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे इनका प्रोनाउन का, तो देम होगा, पे मनी, ठीक है। तो ये सेकंड सेंटेंस हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, चेंज हो गया प्रोनाउंस में जी। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास, अ बॉय सा अ मैंगो, द बॉय वांटेड द मैंगो। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में अ बॉय एंड अ मैंगो ये फर्स्ट टाइम यूज हुए हैं नाउन्स, तो इनकी जगह आप देखें आगे द बॉय रिपीट हो रहा है और द मैंगो भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द बॉय ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो थर्ड में जो अंडरलाइन द बॉय किया है मैंने उसको हम ही में चेंज कर देंगे। वांटेड द मैंगो, अब द मैंगो जो यहीं इसी लाइन में है, तो इसको हम, ये चीज़ है एक, तो इसको हम इट में चेंज कर देंगे। द बॉय सेड, अगेन द बॉय ये रिपीट हुआ है यहाँ पर, ये भी फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है। द मैंगो इज, यहाँ पर द मैंगो अगेन, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इनको यहाँ पर चेंज किया है हमने इट में। द बॉय टुक द मैंगो, फिर द बॉय आ गया और वो भी सब्जेक्ट फॉर्म में, तो इसको ही कर देंगे, ही, और द मैंगो अगेन ये क्या हो जाएगा, इट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ना, इनके यहाँ पर नीचे जो इनका फॉर्म चेंज हो रहा है, यानी प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं सम ऑफ द नाउन्स को, वो मेंशन है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। रानी सा अहमद, रानी कॉल्ड आउट टू अहमद। नाउ रानी एंड अहमद दीज आर बोथ नाउन्स। आगे स्टेटमेंट्स में देखें रानी और ये अहमद जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी जिनको अंडरलाइन करेंगे उनका हमने क्या करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है उन नाउन्स को। तो यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ, और रानी और अहमद ये रिपीटेशन में है, तो रानी यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है, इसका करेक्ट फॉर्म शी होगा, और अहमद का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो इसको हम हिम में चेंज कर देंगे, ठीक है। रानी, तो शी कॉल्ड आउट हिम। अहमद आंसर्ड रानी। अब देखें यहाँ पर अहमद पहले है और अहमद सब्जेक्ट फॉर्म में, तो ये ही हो जाएगा। आगे है यहाँ पर रानी इसी सेंटेंस में, तो ये है हर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर रानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। रानी एंड अहमद, यानी अब दोनों सब्जेक्ट्स जो ना सब्जेक्टिव फॉर्म में हैं, दोनों नाउन्स, तो रानी और अहमद ये प्लूरल में हो गए, तो हम इनको क्या कहेंगे, दे वेंट अलॉन्ग टुगेदर। आई सा रानी एंड अहमद, मैंने रानी एंड अहमद को देखा, तो यहाँ पर रानी एंड अहमद बोथ आर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, रानी एंड अहमद, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, देम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। सो ये हो गया सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 5, आई हर्ड अ बेगर आस्किंग फॉर आल्म्स। ठीक है, यहाँ पर अ बेगर नाउन है और यहाँ पर ये खैरात ये भी नाउन है, तो द बेगर वॉज वेरी ओल्ड। अभी बेगर जो है ना यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये नाउन्स हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आ गए। अब इनको हमने क्या करना होगा, आगे वाले सेंटेंसेस में इसी स्टेटमेंट्स में इस पार्ट ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस में चेंज करना है। तो द बेगर यहाँ पर रिपीट हो रहा है फिफ्थ में, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। द बेगर वॉज, यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट फॉर्म में तो ही लगाएंगे। वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। आई गेव द बेगर,
अब यहाँ पर कह रहा है कि मैंने बेगर को दिए, तो यहाँ पर बेगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उसके लिए हिम यूज करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए अक्वाइन, अक्वाइन यहाँ पर रिपीट पहले नहीं हुआ है तो इसकी वजह से ये क्वाइन क्वाइन ही रहेगा। द बेगर टुक द क्वाइन, अब देखें द बेगर सब्जेक्ट फॉर्म है आगे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है तो ये ही के लिए होगा, और द क्वाइन ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ये पहले इस्तेमाल हो चुका है तो द क्वाइन को इट के लिए हम चेंज कर देंगे इट में। एंड थैंक्ड मी, ठीक है, तो ये आई यूज हुआ था जिसका मी अभी फॉर्म है। तो ये हो गए सारे 5 सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 3 में, जिसमें हमने हर एक के सेंटेंस में से कुछ जो है ना नाउन्स जो रिपीट हुए थे उनको हमने उनकी जगह प्रोनाउन में चेंज किया है। सो दिस इज द सिंपल एक्सरसाइज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम, प्रैक्टिस मोर एंड मोर until you remember all the rules things and repeat the lectures too if you don't take the most of it at the first time. So keep in touch with us and see the lectures, see the YouTube channel Magnet Learning to get more and more knowledge. Thank you. Allah Hafiz. Take care.